All right. Financial risk management. Let's just have a full discussion about इस course में क्या है क्या नहीं है everything. I'll just tell you a little bit about myself. Uh, I graduated from Xavier's College 2012 and उसके बाद I've completed CA, CS, CFA, FRM and CAIA and अभी corporate trainings देता हूँ corporates में Tata, Volvo, Eicher, Genpact, T-Trans and all these, AIIT and all, and I'm a visiting faculty with a lot of these schools and colleges, Xavier's, Cherry Birla, Bhawanipur, BIBS, iLead, iTrade and all these colleges and all. And उसके अलावा consulting work also I do, so I consult clients in Australia, US and all. She helped me make one solar B plan, one of my students, so she's here, and so we create all that. So a lot of work we do on that front also. And उसके अलावा professional courses CA का जो final का जो finance paper है SFM, that is what I take, CFA FRM and MS Excel का भी training we do, and that's gonna begin next week. So उसमें it's more of data analysis and financial modeling and B plans and projections and all of that. So that's what we do. Let's get to the discussion directly. FRM, Financial Risk Management. ये जो डिग्री है, डिग्री का नाम इज FRM, लेकिन इसको देता जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम इज GARP, Global Association of Risk Professionals. So someone just asked me in the beginning of the class that GARP का दो डिग्रीज है, एक FRM है और एक ERM है, Energy Risk Management. So Energy Risk Management will focus too much, वो energy sector, oil and natural gas sector and energy sector के ऊपर focus हो जाएगा. So we'll not look at that right now. We will look at FRM because that is a financial designation you start off with, right? So financial risk management, आपका institute will be GARP, Global Association of Risk Professionals. इसका exam structure क्या है, कैसे क्या register करते हैं, deadlines and all. Let's just start off with the discussion one after the other. इसका registration का details अगर आप देखें, आपका दो exam होता है. Basic structure is कि ये exam जो है, ये degree जो है, ये finance के ऊपर में है. Finance का risk management के ऊपर specialize करा रहे हैं आपको. So it is a finance degree, but the specialization is going to be based on the risk management factor. ठीक है? इसमें आपका एग्जाम का दो एग्जाम होता है इसका. You'll have part 1 and you have part 2. तो आपका दो पार्ट में एग्जाम्स होता है FRM का, तो आपको दो एग्जाम्स के लिए अपियर करना होगा. इसका एग्जाम टेक्स प्लेस इन मई एंड नवंबर का थर्ड सैटरडे. तो मई का और नवंबर का थर्ड सैटरडे पे एग्जाम होता है हमेशा. तो आपका जो भी डेट होगा वो अकॉर्डिंगली होगा कि थर्ड सैटरडे ऑफ मई या थर्ड सैटरडे ऑफ नवंबर. Since right now it's 11th of June today, so we are looking at the November exam अभी. तो आपका third Saturday of November would be I think 19th of November आ रहा है आपका. So 19th November will be your exam. Part 1, Part 2. Part 1 में आपका 100 MCQs होता है and you get 4 hours to answer these questions. And यहाँ पर आपका 80 MCQ होता है and you get again 4 hours to answer the paper. ये जो 4 hours होता है, this is 8 AM to 12 PM and this is 2 PM to 6 PM. ये टाइमिंग जानबूझ करके इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप लोग FRM पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेम डे पर भी दे सकते हैं. अगर आपने दोनों एग्जाम सेम डे पर दिया, अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, इफ यू क्लियर पार्ट 1 देन दे विल चेक योर पार्ट 2 पेपर. से फॉर एग्जांपल आपने दोनों एग्जाम दिया एक ही दिन में, आपने पार्ट 1 दिया, पार्ट 1 क्लियर नहीं किया, तो पार्ट 2 का आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा. Because obviously you need to clear the first level in order to clear the second level. तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि आपका पार्ट 2 क्लियर हुआ है, पार्ट 1 नहीं हुआ है. दैट इज नॉट पॉसिबल. अगर पार्ट 1 क्लियर हुआ एंड पार्ट 2 क्लियर हुआ तो आपको एक दिन में क्लियर हो सकता है. आई हैड डन दैट, आई एक्चुअली डिड नॉट हैव टाइम, सो मेरे को एक ही दिन में करना था. एंड नहीं तो आप पार्ट 1 अभी दीजिए एंड पार्ट 2 नेक्स्ट मे में दीजिए. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन एंड दैट इज व्हाट आई वुड पर्सनली रेकमेंड. हाँ, डिपेंडिंग ऑन द पर्सनल की 6 महीना पूरा का पूरा आपके पास अभी ब्लॉक इज ऑफ and you can study और वो सब के हिसाब से फिर we can discuss on a one-on-one basis कि आपको part 2 भी अभी देना चाहिए कि नहीं. But otherwise generally the part 1 का syllabus is also quite decent. So ऐसा नहीं है कि एकदम आराम से इतना easily निकल जाएगा. So based on your previous background कितना finance आपको आता है and कितना time आप devote कर सकते हो, उसके accordingly we can decide whether you should be giving both the parts or not. The exam pattern is totally MCQ and you will have 4 options each. CFA में 3 ऑप्शंस होता है, इसलिए अलग से बता रहा हूं कि MCQ में 4 ऑप्शंस रहते हैं ABCD. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. देयर इज एब्सोल्युटली नो नेगेटिव मार्किंग. देयर आर 4 ऑप्शंस.
सिलेबस मैंने पहले इससे स्टार्ट किया, सिलेबस से नहीं स्टार्ट किया बिकॉज सिलेबस में मेरे को काफी टाइम लगेगा. आई एक्सप्लेन द सिलेबस इन लॉट ऑफ डिटेल, सो आई एम एक्सप्लेनिंग द पैटर्न फर्स्ट. आपका रजिस्ट्रेशन डेडलाइंस का अगर बात करें अपना, तो अपना नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन डेडलाइन इज 31 जुलाई. उसके बाद का जो नेक्स्ट डेडलाइन आएगा 31 अगस्त होगा, एंड उसके बाद वाला आपका 15 नवंबर आएगा. नवंबर है, आई थिंक अक्टूबर है. डेडलाइन रहेगी सितंबर ही है, नहीं हाँ इट्स अक्टूबर, 15 अक्टूबर. ओके, अब फीस वगैरह का भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज डेडलाइन हैज टू डू विद फीस ओनली. FRM पार्ट 1 पार्ट 2 दो एग्जाम है. देर इज अ मैंडेटरी $300 का आपका रजिस्ट्रेशन फी लगेगा. तो द मोमेंट यू वांट टू रजिस्टर फॉर FRM आपका $300 लग चुका. दैट इज अ मैंडेटरी, दैट इज रजिस्टरिंग विद द इंस्टीट्यूट. ये एग्जाम का फीस नहीं है. उसके बाद आप अगर 31 जुलाई तक रजिस्टर करते हैं तो आपका $350 लगेगा एग्जाम के लिए. अगर आप 31 अगस्त तक रजिस्टर करते हैं इट विल बी आई थिंक 475 एंड 650. तो ऑब्वियसली आप जितना देरी से रजिस्टर करेंगे एग्जाम के लिए उतना ज्यादा आपका फीस लगेगा. तो 31 जुलाई के लिए योर फीस इज गोइंग टू बी $350. ये जो फीस है आपका, ये आपका एग्जाम फीस है. तो एवरी टाइम यू सिट फॉर एन एग्जाम यू हैव टू पे. से फॉर एग्जाम्पल आज मैंने पार्ट 1 के लिए एनरोल किया तो मेरे को $650 पे करना होगा. जब आप पार्ट 2 का एग्जाम के लिए एनरोल करेंगे दिस इज ओनली अ वन टाइम फी. पार्ट 2 के लिए आपको $350 खाली देना है. तो दिस टोटल मिनिमम फीस जो आप FRM के लिए कर सकते हैं दैट इज 300, 350 एंड 350. सो दैट विल बी अ टोटल ऑफ $1000. अगर आपका पार्ट 1 क्लियर नहीं होता है, जस्ट इन केस आपको वापस अगर पार्ट 1 के लिए बैठना है तो आपको वापस $350 देना होगा. ऑब्वियसली $350 इज अ कंसिडरेबल अमाउंट, राइट. तो वी हैव टू प्रिपेयर इन सच अ मैनर कि हम लोग का कभी भी वो सिचुएशन नहीं आए कि अपने को दोबारा देना पड़े. ऑब्वियसली वील बी वर्किंग हार्ड एंड क्लियरिंग इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. दैट इज द अमाउंट यू हैव टू गिव. सो $300 आपको रजिस्ट्रेशन के लिए देना होगा. एवरी एग्जाम के लिए 350. जब आप पार्ट 1 के लिए रजिस्टर करोगे तो $650 लगेंगे. उसके बाद $350 एक्स्ट्रा लगेगा. एंड पार्ट 2 के लिए रजिस्टर करोगे तो वही 350. एंड इफ इन केस यू हैव टू गिव द एग्जाम अगेन यू हैव टू पे $350 अगेन. अगर आप डेडलाइन एक्सीड कर जाते हो तो आपका फीस बढ़ जाता है. ऑब्वियसली वी शुड ऑब्वियसली थोड़ा सा प्लान करके देंगे तो आपका फीस नहीं बढ़े. दैट्स व्हाट वी नीड टू ट्राई कि आपका फीस नहीं बढ़े. 31 जुलाई इज द फर्स्ट डेडलाइन. दीज डेडलाइंस आर फॉर द नवंबर एग्जाम. मे का जो डेडलाइन होगा वो आपका नवंबर एग्जाम के बाद निकलेगा. तो दीज आर द डेडलाइंस फॉर द नवंबर एग्जाम, राइट. उसके अलावा नाउ इस एग्जाम के लिए आपका एलिजिबिलिटी, ऐसा कोई एलिजिबिलिटी डिफाइन नहीं है. सो इवन वाइल यू आर परस्यूइंग ग्रेजुएशन यू कैन स्टार्ट ऑफ विद FRM. दैट्स वन. दूसरा चीज, CFA एग्जाम करने के लिए आपको पासपोर्ट इज मैंडेटरी, बट FRM के लिए पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस आइदर वन वर्क. बट आई वुड स्टिल सजेस्ट यू पीपल कि आप लोग का अगर पासपोर्ट नहीं बना हुआ है तो आप लोग इमीडिएटली अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए. बट फॉर द रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट आइदर वन वर्क्स एज एन आइडेंटिटी. बट CFA एग्जाम में बिना पासपोर्ट के नहीं होता है. आपको पासपोर्ट चाहिए वरना आप एग्जाम के लिए रजिस्टर ही नहीं कर पाएंगे. बट FRM के लिए पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस आइदर वन क्वालिफाइड. So deadline and fees is this. Exam dates we already know. It's the third Saturday in the month of May or in the month of November. उसके बाद let's come to the syllabus portion now. This part is okay. Everybody is understood. अच्छा, आपका जो पेमेंट होगा वो क्रेडिट कार्ड से ही होगा. डेबिट कार्ड से भी पेमेंट इज नॉट पॉसिबल. आप अगर पेमेंट डेबिट कार्ड से भी करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होगा पेमेंट. Right, so you'll need a credit card to make the payment. Because Forex ka payment, even with CFA Institute, your Forex payment cannot be made with a this thing, debit card. Let's discuss syllabus in detail and उससे आपको पता चलेगा कि आपका क्या application है about this degree, about this course. Part 1 का syllabus if we see, we have 4 subjects. The first one is about foundation of risk management. Second is quants, quantitative methods. Third one is financial products. And the fourth one is your valuation methodology. मैं पार्ट 1 एक्सप्लेन करने के पहले पार्ट 2 करूंगा एक्सप्लेन, बिकॉज पार्ट 1 में मेरे को टाइम ज्यादा देना है. पार्ट 2 आई जस्ट नीड टू जस्ट इंट्रोड्यूस एंड लीव इट एट दैट.
ऑलराइट, पहले पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का सारा रिस्क सब्जेक्ट इज व्हाट यू गेट इन पार्ट 2। मार्केट रिस्क आपका 80 क्वेश्चंस था, आपको पूरा का पूरा बाइफिकेशन दे दिया जाता है कि 80 क्वेश्चंस में 25% ऑफ 80 इज 20 क्वेश्चंस मार्केट रिस्क का आएगा, 20 क्वेश्चंस क्रेडिट रिस्क का आएगा, 20 क्वेश्चंस ऑपरेशनल रिस्क का आएगा, 8 questions will go to current issues and only 12 questions will come into your investment risk. We are studying about risk. तो पहला लेवल जो क्या करेगा ना आपका स्टैटिस्टिक्स फाइनेंस का बेस बिल्ड करेगा। पहला लेवल इज नॉट गोइंग टू डिस्कस सो मच ऑफ रिस्क एंड रिस्क, वो आपको सब चीज समझाएगा, प्रॉपर फाइनेंस का पूरा एजुकेशन देगा, हर चीज फाइनेंस के बारे में बताएगा। आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, आपका रिस्क क्या होता है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा ये, एंड डेरिवेटिव्स क्या होता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या होता है, आप किस तरीके से रिस्क मैनेज करोगे यूजिंग द फाइनेंशियल प्रोडक्ट। सो दैट पार्ट इज गोइंग टू बी कवर्ड इन FRM पार्ट 1. Part 1 is not going to be so much about the risk management, but more so about the finance part, because you need to understand finance in order to manage its risk, right? So 80% 90% finance है, risk management might be only 10 to 15 or 20% in general. हाँ, of course सब चीज समझाया उसी पर्सपेक्टिव से कि आपका रिस्क मैनेज आप कर पाओ। सेकेंड लेवल का आप सब्जेक्ट का नाम देखेंगे तो 4 सब्जेक्ट का नाम ही रिस्क है, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क, and there is a 10% weightage given to current issues. So I'll just discuss the part 2 first. Say for example, आज अगर ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे होता है तो ONGC स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होगा। आज अगर आपका कोई रॉ मटेरियल का प्राइस ऊपर नीचे होगा तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ेगा। आज अगर इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट ऊपर नीचे होगा, as Raghuram Rajan is being so very much criticized with respect to his policies, although he is the one who's regulating and he knows what he's doing right now, तो वो सब चीज अगर देखोगे तो इंटरेस्ट रेट का चेंजेस अगर होगा तो बॉन्ड्स का वैल्यू चेंज होगा, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी का वैल्यू चेंज होगा। होम लोन्स आप देखते हो तो वो भी तो इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करता है। आप सोच के देखो, आज अगर इंटरेस्ट रेट इतना नीचे गिर जाए कि 2-3-4% के पास आ जाए, डोंट यू थिंक एवरीबडी विल बोरो द मनी फ्रॉम द बैंक एंड बाय हाउसेस? डोंट यू थिंक हाउसेस का डिमांड माइट इंक्रीज? डोंट यू थिंक रियल एस्टेट प्राइसेस माइट गो अप? तो आज मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स है, इंटरेस्ट रेट होता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, बहुत तरीके का फैक्टर्स होता है। तो वो सारे के सारे फैक्टर्स किस तरीके से मूव करेंगे एंड किस तरीके से आपका जो वैल्यूएशन है या जो है जो भी चीज आप वैल्यू कर रहे हो उसका वैल्यूएशन किस तरीके से चेंज होगा, हाउ इज दैट व्हाट यू कॉल सेंसिटिव टू द चेंजेस इन द मार्केट, वो मार्केट रिस्क हुआ कि मार्केट फैक्टर्स कैसे चेंज करेंगे, तो उसके बेसिस पर आपके साथ क्या क्या चेंजेस होगा, आपका जो भी मार्केट रिस्क है, दैट इज व्हाट कम्स अंडर मार्केट रिस्क, and we need to study that, we need to manage that. Say for example, a couple of years back rubber के prices काफी गिर गए थे, Fiat tires का profitability had increased considerably उस समय, तो आज आपका वो profitability is not sustainable ना, वो फ्यूचर में हमेशा थोड़ी रबर का प्राइसेस गिरा हुआ रहेगा। तो उसके कारण आज रबर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो मेरा रॉ मटेरियल प्राइस गिरेगा तो मेरे स्टॉक पे क्या इफेक्ट आएगा, हाउ कैन आई मैनेज दोज काइंड ऑफ रिस्क। आज से फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल का प्राइसेस तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स राइट नाउ, तो उसके कारण भी देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क दैट इज हैपनिंग एंड दैट कम्स अंडर योर मार्केट रिस्क। मार्केट में जो फैक्टर्स है उनके कारण आपके ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है वो मार्केट रिस्क में स्टडी करते हैं। तो रिस्क को कैलकुलेट करना, रिस्क को मेजर करना, रिस्क को मिटिगेट करना, मतलब वो रिस्क को कैसे प्रिवेंट करे। आज मेरे को अगर दिख रहा है कि सामने ऐसा ऐसा होने वाला है तो हाउ डू आई सेव माई सेल्फ फ्रॉम दैट। आग लगने वाला होगा तो फायर इंश्योरेंस लोगे ना जाकर, तो फाइनेंस में भी इंश्योरेंस जो होता है ना, दैट इज व्हाट रिस्क मैनेजमेंट इज। फाइनेंस में आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते ना, तो फाइनेंस में किस तरीके से अपना रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी स्टडीइंग ओवर हियर। क्रेडिट रिस्क इज जहां पर सामने वाला डिफॉल्ट कर जाए, आपने लोन लेकर के रखा है, सामने वाला लोन नहीं चुका रहा है, वो क्रेडिट रिस्क हुआ, द पर्सन माइट डिफॉल्ट। एंड क्रेडिट रिस्क की बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है एक्चुअली, यू विल हैव अ लॉट ऑफ बाइफिकेशंस विद इन क्रेडिट रिस्क, तो वी विल बी स्टडीइंग ऑल दैट। उसको मेजर करना, अगेन उसको मेजर करो, मिटिगेट करो, उसको कम करो, किस तरीके से आप अपने आप को इंश्योर करेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एंड ऑल, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड देयर विल बी लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो आप यूज कर सकते हो। आज लाइफ इंश्योरेंस भी तो बहुत तरीके का होता है ना, टर्म इंश्योरेंस, ये वो बहुत एन्युटी एंड लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंश्योरेंसेस आर देयर, एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियल सेक्टर में तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट हो जाएगा ये सारा चीज। So that is what we discuss in the credit risk, the whole modeling and the analysis and all of that. Third one we come to is operational risk. Operational risk में अब जो भी रिस्क मार्केट क्रेडिट इन्वेस्टमेंट में नहीं जाता है उसको हम लोग जनरली रेसिडुअल रिस्क भी कैटेगराइज जनरली एज योर ऑपरेशनल रिस्क। आज अगर कंपनी में डेटा थेफ्ट हुआ, फ्लिपकार्ट आईसीआईसीआई बैंक का अगर सपोज करो सर्वर डाउन हो गया, तब इंटरनेट बैंकिंग प्रॉब्लम हो जाएगा।
डेटा थेफ्ट होना, आग लग जाना, मतलब ऑल दीज काइंड ऑफ ऑपरेशनल जो डे टू डे एक्टिविटीज में जो इश्यूज आएगा, दैट गेट्स कवर्ड इन योर ऑपरेशनल रिस्क. ऑपरेशनल रिस्क थोड़ा सा रिलेटिवली आप मतलब people find it relatively a little difficult, but the most important chunk of operational risk is Basel norms. What is Basel norms? I'd like to talk about it because it's one of the most important components of FRM exam. So Basel norm के ऊपर आपका I think 3 या 4 चैप्टर या कुछ ऑपरेशनल रिस्क में रहेगा. Basel के बारे में एक छोटा सा चैप्टर आप अभी भी पढ़ोगे, थोड़ा सा ऑपरेशनल रिस्क का एक छोटा चैप्टर है आपका लेवल 1 में, उसमें भी आप Basel norm के बारे में पढ़ोगे. What is Basel norm basically? आज से फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कंपनीज अलग अलग तरीके से अपना अकाउंट्स नहीं बना सकते, सब कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं जो सीए इंस्टीट्यूट ने दे के रखा है. Everybody is following those accounting standards, right? That the CA Institute has provided, so that everybody is making the accounts in a similar manner, in a similar fashion, right? Say for example, with respect to products, there is an ISI mark stamp लगाता है ताकि everybody knows that yeah the products are legitimate and they are correct and everything. We are coming up with IFRS, global accounting standards, ताकि पूरा globally सब कोई similar standards follow कर रहे हैं. We have come up with IFRS, right? So that every company, because there are so many multinationals, every company is investing in a company abroad. सब कोई का subsidiaries दूसरे दूसरे countries में है, तो आज एक standardization का जरूरत आ गया उसके कारण. So we've got IFRS, accounting standard which is common to the globe. उसी तरीके से बैंक जो है वो भी तो आपस में इतना ट्रेड कर रहे हैं. आप सोच के देखो, HDFC बैंक, सिटी बैंक, you've got all the international banks का presence in almost all the countries. All the international banks are also present across all the countries, right? And at the same time, banking sector बहुत बड़ा बन गया. आप ये सोच रहे हो, पहले बैंकिंग ऑपरेशन यूज्ड टू बी खाली आप डिपॉजिट कर दो पैसा, आपको पैसा मिल जाएगा. अभी क्रेडिट कार्ड है, डीमैट अकाउंट्स है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज है, कॉर्पोरेट बैंकिंग मतलब कॉर्पोरेट्स ऑल्सो बैंक, उनका बैंकिंग का काम होता है, इंश्योरेंस का काम होता है, रिस्क मैनेजमेंट का काम होता है. सो योर बैंकिंग इंडस्ट्री हैज ग्रोन लाइक ह्यूज. एंड अभी बैंकिंग वो नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं था. पहले बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड था, आजकल बैंक्स के ऊपर में रेगुलेशन काफ़ी कम हो गया था. इसीलिए तो आपने जो 2007-8 का जो क्राइसिस देखा, इफ़ यू सीन, आज इतना बड़ा बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन होने लग गया है. छोटा छोटा ट्रांजैक्शन का तो कोई बात ही नहीं करता है, इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होने लग गए हैं कि रिस्क मैनेजमेंट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बैंक. लीमन ब्रदर्स एक पूरा का पूरा बैंक डूब गया. दैट वॉज अ वेरी बिग शॉक टू द इकोनॉमी. ऑब्वियसली एक्चुअली एक तरीके से फॉर्मली हम लोग का रिसेशन बिगिन हुआ था जिस दिन लीमन ब्रदर्स गिरा था, कि हाँ अब रिसेशन हैज बिगन. So now we saw that the recession has begun. It was formally set when a bank, आप सोच के देखो, आज ICICI बैंक में जाओगे वो बोल देगा कि भाई ताला लग गया, बैंक बंद हो गया. आप विश्वास करोगे कोई भी बैंक में पैसा डालने के लिए? एंड इफ मनी इज नॉट देयर इन द इकोनॉमी, हाउ विल द इकोनॉमी फंक्शन? एक बैंक का डूबना इज अ वेरी बिग डील. इट्स अ वेरी 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 बिग डील. यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो बैंक्स के लिए भी ना, क्योंकि इतना मल्टीनेशनल हो गया है, इतना बड़ा बैंक्स का साइज एंड ऑल हो गया है, तो इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट दैट दी बैंक्स के लिए इनका एक कॉमन रेगुलेशन वगैरह हो. तो बैजल नॉर्म क्या था? बैजल 1 था, फिर 2 आया, एंड अभी 3 इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पर है. तो ये लोग रूल्स वगैरह बना के रखते हैं कि एक बैंक कितना रिस्क ले सकता है, कैसा रिस्क ले सकता है. से फॉर एग्जाम्पल स्मॉल लिटिल थिंग आई विल शो यू. एक बैलेंस शीट है. आई प्रेफर ड्रॉइंग द टी फॉर्म क्योंकि उससे समझ में इजी आता है. सपोज बैंक के एसेट्स हैं एंड बैंक के एसेट्स आर वर्थ 100. आज बैंक के पास सोचो उसका लायबिलिटीज, जितने भी लोगों ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, डोंट यू थिंक सारा का सारा अमाउंट इज योर लायबिलिटी फ्रॉम द बैंक पॉइंट ऑफ व्यू? आज मैं बैंक में करंट अकाउंट करूं, सेविंग्स अकाउंट करूं, फिक्स डिपॉजिट करूं, एवरीथिंग इज अ लायबिलिटी फ्रॉम द बैंक पर्सपेक्टिव. So उस सिचुएशन में obviously liability is going to be huge, 80, 90 or something, and equity of the bank is going to be only 10 or 20 or something. बहुत ही छोटा अमाउंट होगा, राइट? इक्विटी छोटा पोर्शन होगा. अब अगर ये एसेट का वैल्यू गिरता है, अगर बैंक डूबता है, तो पहले 20 का नुकसान इक्विटी का होगा, बाद में तो 80 का नुकसान बैंक वाला लोग का होगा, जो डिपॉजिट किए वो लोग का हो जाएगा, कस्टमर्स का. तो डोंट यू थिंक द बैंक नीड्स टू मेंटेन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ इक्विटी? बैंक ने जितने रिस्की एसेट में पैसा लगाया होगा उतना ज्यादा इक्विटी रखना बनता है बैंक का. जितना ज्यादा रिस्की एसेट में आप पैसा लगाओगे उतना प्रोबेबिलिटी दैट द एसेट्स का वैल्यू विल फॉल डाउन, एंड उतना ज्यादा यू शुड हैव इक्विटी. सो हाउ मच इक्विटी शुड वी कीप? तो बैजल नॉर्म्स वगैरह क्या है ना, वो ये इक्विटी कितना मेंटेन होना चाहिए, कितना कैपिटल रेशियो एंड टियर 1 टियर 2 कैपिटल, नॉट लॉट ऑफ थिंग्स कम इनटू प्ले. So Basel norms are basically describing कि बैंक का कितना रिस्की एसेट है एंड उसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से उसका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड ऑल होगा, एंड लॉट ऑफ मोर डिटेल्स. आई मीन दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द Basel norm का पार्ट व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट.
किस तरीके से ऑपरेशनल रिस्क मेजर होता है, क्रेडिट रिस्क मेजर होता है, किस तरीके से कैपिटल मेंटेन करेंगे, ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन योर बासिल नॉर्म वाला पोर्शन. बोलिए फाइन. सो ऑपरेशन का वन इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, एंड बाकी और भी काफी कुछ है. व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट रिस्क, थोड़ा सा हेज फंड वगैरह भी आ जाता है. आज म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स हुआ जहां पर अपने सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा डिपॉजिट किए. म्यूचुअल फंड में देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर्स एंड ऑल, CFA, FRM, MBA एंड ऑल दोज पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग अपना पैसा मैनेज कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग रिटर्न्स एंड गिविंग इट टू अस द पब्लिक. दैट इज व्हाट म्यूचुअल फंड इज, राइट. म्यूचुअल फंड में हम लोग बहुत छोटा छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. उससे फायदा क्या होता है, I can deposit a 2,000 or a 5,000 in mutual fund, and that is also professionally managed, and everybody gets returns out of that. But होता क्या है, म्यूचुअल फंड के ऊपर में रेस्ट्रिक्शन बहुत है. अगेन द सेम लॉजिक, पब्लिक का पैसा डूबना नहीं चाहिए, शारदा स्कैम जैसा होना नहीं चाहिए. एटलीस्ट दैट्स व्हाट वी वांट. सो लीव बंगाल अपार्ट, बट that's in general what we would want. तो उस सिचुएशन में व्हाट हैपेंस, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर में भी ना बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन होता है. हेज फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड जैसा ही हुआ, लेकिन हेज फंड को एडवर्टाइज करना अलाउड नहीं है. हेज फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज क्वाइट हाई. ओनली द क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट. मतलब वो जिसका नेटवर्थ इज 1 करोड़ ऊपर, $10 मिलियन ऊपर, वैसा टाइप का लोग, तो दे विल इन्वेस्ट एंड दे कैन टेक अ लॉट ऑफ रिस्क. म्यूचुअल फंड रिस्क नहीं ले सकता बहुत ज्यादा, लेकिन हेज फंड रिस्क ले सकता है. तो उनका जो इन्वेस्टमेंट रिस्क वगैरह है, पोर्टफोलियो का जब आप बात करें कि एक पूरा का पूरा पोर्टफोलियो है, उसका इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है, दैट इज व्हाट वी स्टडी इन द इन्वेस्टमेंट रिस्क का चैप्टर. एंड करंट इश्यूज बिकम्स इंपॉर्टेंट. करंट इश्यूज बेसिकली, करंट इश्यूज से मिलता जुलता एक छोटा चैप्टर है आपका यहाँ पर, फाइनेंशियल डिजास्टर्स. विल डिस्कस दैट. करंट इश्यूज क्या है ना, आज पुराना जमाना मतलब ओवर द पास्ट इन हिस्टोरिकल टाइम्स, वट एवर इश्यूज यू हैड, आज लीमन ब्रदर्स डूबा, तो डोंट यू थिंक हम लोग का काम बनता है कि उसको स्टडी करें कि क्यों डूबा, क्या क्या इश्यूज से डूबा, क्या करते तो नहीं डूबता, डूबने के बाद कितना नुकसान हुआ, किस तरीके से उसको बचाया जा सकता था. देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज दैट क्रॉप अप विद रिस्पेक्ट टू द लीमन ब्रदर्स एज वेल, राइट. So don't you think we should study that in order to not repeat the same mistake in future? Right. So current issues are going to be discussing about those financial disasters that have happened in the past. We study those in order to understand a few basic things. What exactly happened, how it could have been prevented, what was the impact of losses, and how we should go ahead and in order to make sure that इस तरीके का disasters future में economy में नहीं है. So that is what we discuss in the part 2 curriculum. 80 MCQs, 2 बजे से 6 बजे तक, 4 घंटा, and that is no negative marking, 4 options each. Fine. Let's come to the part 1 का syllabus. Part 1 का syllabus again is 100 MCQs, not 80, in the same duration, 4 hours. टाइम कंस्ट्रेंट स्टूडेंट्स लोग को लगता है, एग्जाम के बारे में और डिटेल में डिस्कस करूंगा उसके बाद. उसका ब्रेकअप जनरली ये है, 20 क्वेश्चंस आपका फाउंडेशंस एंड कौन से आता है, बुक 1 and 2. थर्ड एंड फोर्थ बुक से यू गेट 30 क्वेश्चंस ईच. सो दैट मेक्स अप टोटल 100 क्वेश्चंस. परसेंटेज वैसे ही दिया हुआ है 20-20 एंड 30-30. जो पहला वाला जो बुक है, दैट इज रिलेटिवली मोर, थोड़ा सा पोर्शन, थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा पोर्शन है इसमें. जो सेकेंड वाला बुक है, दैट्स मोर न्यूमेरिकल and numerical. It's going to be a mix, the four books. The first one is talking about what is risk management क्या होता है, and वो सारा theories है. उसका कुछ chapters है, I'll explain in detail. Second वाला is more to do with statistical and the mathematics वाला part. Third वाला is to do with more of derivatives and futures, forwards and क्या क्या type का financial product होता है. Fourth वाला is to do with valuation वाला part. It's just taking this one a little forward and कुछ और section, एक VAR करके एक section होता है, वो भी add किया हुआ है. I'll just explain one after the other. First वाला का अगर आप बात करें तो आपका risk management related काफी सारे chapters हैं. दूसरा एक content आता है आपका financial disasters का. One is your GARP code of conduct. पोर्टफोलियो का एक सेक्शन है जिसके ऊपर में आपको 3-4 चैप्टर्स मिलेगा, and a little bit of portion about the data management and data quality and all. So this is the basic outline of the first book. तो पहला 3-4 चैप्टर्स वो डिस्कस कर रहा है कि आपका रिस्क क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क क्या है, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, सो दोस काइंड ऑफ रिस्क, उसका डेफिनेशंस, व्हाट इज इट, वी डिस्कस ऑल दोस थिंग्स इन डिटेल. उसके बाद उसमें एक नया चैप्टर इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है अभी, दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक. तो बैंक के पर्सपेक्टिव से रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, दैट वी डिस्कस.
सो रिस्क मैनेजमेंट इज गोइंग, सीआरओ क्या होता है, सीआरओ का रोल क्या होता है ना, व्हाट इज अ सीआरओ? सो आज अगर अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो सीईओ सीएफओ वगैरह आप लोग सब जानते हैं. CEO is the chief executive officer who manages the business and who looks after the business from a very macro perspective. CFO हुआ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर who talks about the वो जो फाइनेंसेस कंपनी का मैनेज करता है. आप एक म्यूचुअल फंड या एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का बात करेंगे तो एक CIO भी होता है, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर. अगर आप एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी का बात करेंगे तो एक CTO करके भी एक और बंदा होता है, दैट इज योर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर. एब्सोल्युटली. There is also a post called a CRO, Chief Risk Officer. When you are talking about risk management का requirement क्यों है? सबसे पहला चीज, इतना ज्यादा स्केल में आजकल बिजनेस होने लग गया है, दैट इज वन रीजन. दूसरा, एवरी बिजनेस इज नाउअडेज हैपनिंग ऑन अ वेरी ग्लोबल एंड अ मल्टीनेशनल स्केल. ई-कॉमर्स एंड ऑल इज हेल्पिंग अ लॉट. तो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो फॉरेक्स का रिस्क एंड उसको मैनेज करना, बिकॉज एक्सचेंज रेट कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, तो उसको मैनेज करना, वो देखना पड़ेगा आपको. चौथा चीज, बैंकिंग ऑपरेशंस हैव बिकम वेरी ग्लोबल एंड द बैंक्स हैव बिकम वेरी लार्ज. आज बड़े बड़े बैंक क्या होते हैं ना, छोटे बैंक्स को अक्वायर करके दे आर बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर डे बाय डे. तो उनको मैनेज करना, उनका रिस्क मैनेज करना. नेक्स्ट पार्ट इज रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट इज बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज द काइंड ऑफ क्राइसिस वी हैड 2007-8 का, उस समय जो हम लोग का रिसेशन आया ना, उस समय जो एक फाइनेंशियल डिजास्टर हुआ, लीमन ब्रदर्स फॉलिंग एंड ऑल, इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज दैट. दूसरा, आज के दिन बिजनेसेस बहुत ज्यादा जल्दी चेंज हो रहा है. आप देखिए 25% फ्लिपकार्ट को अभी वैल्यूएशन डाउन किया, उसके पहले एक बार और वैल्यूएशन डाउन किया था. अचानक से लोग वैल्यूएशन एक कंपनी को यहां से लेकर यहां पहुंचा रहे हैं, अभी यहां से लेकर यहां पहुंचा रहे हैं. इफ यू बी नोटिसिंग द फ्लक्चुएशन, द वॉलिटिलिटी इन द इकोनॉमी हैज इंक्रीज्ड अ लॉट. तो आज उस चीज को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है. आप एनर्जी सेक्टर देखें तो वहां पर देयर इज अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन, बिकॉज व्हेन यू टॉकिंग अबाउट ऑयल एंड गैस का प्राइसेस एंड ऑल, वो ना कि खाली एनर्जी सेक्टर को, बट बाकी सेक्टर्स भी तो एनर्जी पर डिपेंड करता है. आपका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो या कोई भी हो, टेस्ला मोटर्स कमिंग अप विद द इलेक्ट्रॉनिक वाला इलेक्ट्रिक कार्स एंड ऑल, तो ऑब्वियसली एनर्जी का अगेन कंजम्पशन कम हो जाएगा. तो अगेन यू हैव टू सी हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. अभी एक रीसेंट आया था सऊदी अरेबिया था, आई एम नॉट श्योर, तो बताना तुम लोग कोई न्यूज पढ़ा होगा तो. उबर का एक था ना कि उबर में इन्वेस्ट किया उसने, सऊदी अरेबिया किया ना, सऊदी अरेबिया इन्वेस्टेड इन 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 उबर रिसेंटली. तो उबर को कैपिटल रेज करने का जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही उसके पास इन्वेस्टर्स खड़े हैं. एंड सऊदी अरेबिया इज मेकिंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन नॉन ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, बिकॉज उसको ये समझ में आ गया कि ऑयल एंड गैस इज नॉट समथिंग दैट इट कैन डिपेंड ऑन फॉर इटर्निटी. क्योंकि आज जब ऑयल का प्राइसेस आप सोच के देखिए $100 के ऊपर था, अब $20 टच कर गया था. 80% वैल्यूएशन, पूरा का पूरा इकोनॉमी उसके ऊपर डिपेंड करता है. वो बंदा तेल बेचता है, उससे वो खाना खरीदता है बाकी जगह से. तो आप सोच के देखिए, एक इकोनॉमी जो इतना ज्यादा ऑयल ड्रिवन है, डोंट यू थिंक इट इज सुपर रिस्की इफ द ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट लाइक दिस एंड 100 के ऊपर एंड 20, आई मीन इट्स लाइक अ ह्यूज लीप. एंड 20 का 40 के ऊपर भी चला गया, 50 टच कर गया. यू अंडरस्टैंडिंग द लीप, द चेंज. इतना ज्यादा अगर चेंज होगा, कैसे ओएनजीसी मैनेज करेगा, कैसे रिलायंस पावर मैनेज करेगा, किस तरीके से पूरा का पूरा कंट्री मैनेज करेगा. तो एनर्जी अगेन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर वेर इन द रिस्क मैनेजमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, आग लगने का रिस्क है तो फायर इंश्योरेंस ले लेंगे आप. शिप का आपका बिजनेस है, शिपिंग बिजनेस है, आप मरीन इंश्योरेंस ले लोगे. बट देयर आर लॉट ऑफ इंश्योरेंसेस व्हिच यू कैन नॉट जस्ट गो एंड बाय इंश्योरेंस इन द मार्केट. लाइक टीसीएस इन्फोसिस का आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि टीसीएस इन्फोसिस का मैक्सिमम रिटर्न्स आपका यूएसडी में आता है. तो आज अगर यूएसडी का रेट ऊपर नीचे होता है तो टीसीएस इन्फोसिस का पूरा वैल्यूएशन चेंज हो जाएगा. यू अंडरस्टैंडिंग? सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. साइलेंट प्लीज. So it becomes very important to understand that risk management ये सारे reason से इतना ज़्यादा important हो रहा है. Basel norms in India is supposed to be getting mandatory, मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप आज बोलोगे भाई कल से ये Basel 3 लगाना है परसों से implement हो जाएगा. Phases में implement होता है. It takes a lot of time to implement these. तो Basel norms वगैरह implement करने का deadline जो RBI ने दे करके रखा है, that is 2019 March. So Basel norms, as I was talking about, ICAI का standards, I think I'll deviate a little bit. तो उसमें क्या होता है, वो एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है सेंट्रल जो बैंक्स के बारे में. तो अब ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो बाहर का कोई बंदा आके अपना आईसीआईसीआई बैंक को या एसबीआई को नहीं बोल सकता है कि ये रूल फॉलो करना पड़ेगा. इट इज द आरबीआई और द सेंट्रल बैंक्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो अपने बैंक्स को बोल रहे हैं कि तुमको बैजल फॉलो करना पड़ेगा. सो बैजल 3 नॉर्म्स आर गोइंग टू गेट मैंडेटरी बाय 2019. 2020 तक मोस्ट प्रॉब्ली एसबीआई के 70% स्टाफ इज गोइंग टू गेट रिटायर्ड बाय 2020. तो यस, और बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी आ रहा है.
आज के दिन हर कोई कार्ड स्वाइप करता है, कोई भी बैंक जाने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है, यू नो दैट, दीपिका पादुकोण. सो एंड दैट्स द रियलिटी. मेरा कुछ इश्यूज चल रहे हैं, मैं बैंक जाता ही नहीं हूँ, कॉल कर, मैं मेल पे ही कराऊंगा काम, जाऊंगा ही नहीं. आई मेक श्योर दैट हैपेंस ऑनलाइन और ऑन द ईमेल पार्ट. सो ऑब्वियसली बिजनेस का डायमेंशन भी ना हर जगह चेंज हो रहा है. लाइक अभी brick and mortar shops are not doing well. Brick and mortar shops are actually not doing well because आधा से ज़्यादा चीज़ तो अब आज सेलफोन के इतने शॉप्स खुले थे बीच में, Planet M and all those chains and all had started. आजकल सेलफोन के कितने शॉप्स दिखते हैं आपको? हाँ, फोन कवर का शॉप मिलेगा, बट फोन्स का शॉप, it's difficult, right? So taking all these things into consideration, businesses have been changing very quickly. अभी ये कुछ स्ट्राइक हुआ था, कुछ मेडिसिन शॉप्स ने स्ट्राइक किया था बिकॉज फार्म इजी करके एक ऐप था. सो फार्म इजी, सस्ता सुंदरन 2-3 आ गया, तो आपको 20% डिस्काउंट पे अगर घर पे आपको कोई डिलीवर करेगा, तो ऑब्वियसली हु बॉदर्स, हु केयर्स अबाउट यू नो गोइंग टू द शॉप एंड बाइंग द मेडिसिन एंड ऑल. तो आप समझ रहे हैं कि बिजनेसेस कितना जल्दी चेंज हो रहा है. 3G आउटडेट हुआ, 4G के बाद कुछ और आ जाएगा. सो अंडरस्टैंडिंग द बिजनेसेस आर चेंजिंग सो क्विकली. उसके कारण आपका बिजनेस कितना जल्दी, what do you call it, can become outdated, so taking all these things into consideration, it has become very important. So taking all these things into consideration, it's become very important that risk management वाला चीज पे अपने focus करें थोड़ा. You're getting the idea? So right, so CRO एंड ऑल का रोल का बात कर रहा था, तो ये सब रीजन के कारण रिस्क मैनेजमेंट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. तो CRO का रोल इज बेसिकली वो रिस्क ऑफिसर का रोल. तो कोई भी बैंक का अगर बात करें तो CRO का डेजिग्नेशन हैज टू बी फिल्ड इन. कोई भी अगर फाइनेंशियल सर्विसेज, IDBI हो, इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, किसी का भी अगर बात करें, तो CRO बिकम्स एन इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन एंड यू नीड रिस्क पीपल. A lot of people from the engineering background and the science background, economics honors बोलिए, engineering background बोलिए, IT department बोलिए, a lot of people want to do this because risk management, risk audit होता है, IT risk होता है, तो बहुत सारा risk department वाले जो लोग हैं, they are focusing on this risk sector right now. So that risk management में होता क्या है, what is risk management, enterprise wide risk management होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बैंक है, उसका 10 डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग सब कोई अपना रिस्क मैनेज करता है. वी शुड हैव अ सेंट्रलाइज्ड रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. सो ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस टुगेदर. फाइनेंशियल डिजास्टर इज गोइंग टू बी अ वन सिंगल चैप्टर, बट इससे 2 क्वेश्चन जनरली आ जाता है आपका, 2-3 क्वेश्चन. फाइनेंशियल डिजास्टर इज गोइंग टू बी, आपको 10-12 केस स्टडी दिया गया है. इट्स लाइक एक पेज का छोटा छोटा है. वील डिस्कस दैट. सो कि से फॉर एग्जांपल देयर इज अ चेज मैनहट्टन बैंक, तो उसमें इस बंदे ने ऐसे ऐसे चोरी किया, ऐसा ऐसा एम्प्लॉय ने किया, a trader went rogue. I don't know how many of you've seen Rogue Trader movie. That is based on one of the case studies over here. उसी के ऊपर मूवी बनाया हुआ है. तो फाइनेंशियल मूवीज वगैरह भी देखिएगा. अच्छा, वन मोर थिंग, I'll be irritating you guys. तुम लोग का बाकी है. You people are supposed to start reading books, finance and management related. तुम लोग का हुआ नहीं अभी तक. हो गया? एक भी बुक नहीं हुआ है. हुआ है. बुक तो हुआ है. गुड. सो आई एम गोइंग टू बी फोकसिंग कि नहीं, आप लोगों को बुक्स पढ़ने होंगे. एंड इन लोगों के साथ PDF शेयर किया हुआ है. I'll get the PDF. आप लोग का मेल IDs वगैरह है मेरे पास, so I'll get that shared across as well. 10-12 बुक्स डाला हुआ है PDF में, वो लिंक है, घर पे बैठ के फ्री में पढ़ो बुक्स, बट यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. एंड न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू करना पड़ेगा. थोड़ा बहुत मार्केट फॉलो करोगे, न्यूज़ फॉलो करोगे, बिकॉज ऑब्वियसली क्लास को इंटरैक्टिव एंड लाइवली कैसे बनाएंगे अपने, अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं यूज करेंगे तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, राइट. सो यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, वरना अप्लाई नहीं कर पाओगे अपना नॉलेज. ठीक है. सो एनीवे, सो फाइनेंशियल डिजास्टर्स वी स्टडी दोज. गार्प कोड ऑफ कंडक्ट इज बेसिकली कि आपका एथिक्स करके कुछ होता है. आज से फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसमें मेरे को बोला हुआ है कि 20% प्रॉफिट तुम्हारा. अब से फॉर एग्जांपल मैं आराम से धूमधाम ट्रेड मार दिया एकदम बड़ा सा, प्लस इतना माइनस उतना, बहुत वॉल्यूम में ट्रेड मारा. क्यों? फायदा होगा तो 20% मेरे को मिलेगा, नुकसान होगा तो रिजाइन करके निकल जाऊंगा. डोंट यू थिंक दैट्स अनएथिकल? सो इसी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट का प्रोफेशन, आप CA का प्रोफेशन बोलिए, डॉक्टर्स के प्रोफेशन बोलिए, फाइनेंस के प्रोफेशन बोलिए, एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द US इंस्टीट्यूट एंड द ग्लोबल डेजिग्नेशंस एंड ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, इस चीज पर बहुत फोकस करते हैं. CFA में सेम एथिक्स का जो करिकुलम है, दैट इज देयर इन लेवल 1, 2 and 3 ऑल. You have a relatively smaller portion in this exam, but GARP code of conduct is that ethics वाला part. You'll get a question over here, a couple of them. छोटा सा ये 4 पेज का चैप्टर है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सो वी स्टडी द गार्प कोड ऑफ कंडक्ट ओवर हियर, कि क्या इश्यूज है, क्या क्या आपका एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कि जैसे आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, तो उस तरीके का काम आप नहीं कर सकते.
पोर्टफोलियो इज गोइंग टू बी अ सेक्शन. पोर्टफोलियो क्या होता है, जब आप मल्टीपल एसेट्स, लायबिलिटीज वगैरह, मल्टीपल इक्विटी शेयर्स हुआ, से फॉर एग्जांपल मैं आज शेयर्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ, बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूँ, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो बहुत सारा चीज को इन टोटलिटी इफ आई पुट दोस थिंग्स टुगेदर तो वो मेरा पोर्टफोलियो बन गया, पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स. तो वो पोर्टफोलियो एज अ होल का रिस्क रिटर्न का कैलकुलेशन वगैरह कैसे होगा, दैट कम्स अंडर पोर्टफोलियो. क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेरे को कैलकुलेशन लगेगा, इसलिए जब तक मैं क्वांट्स का फर्स्ट हाफ नहीं कर लेता मैं पोर्टफोलियो नहीं पढ़ाता हूँ. उसके बाद वी कम टू द डेटा एनालिसिस. थोड़ा सा बेकार सा इरिटेटिंग सा थ्योरी चैप्टर है दो तीन. यू विल गेट, अच्छा, you will get short notes and all those things over here. Order of study and all also I'll tell you. After this एक बार syllabus complete कर लेते हैं, उसके बाद I'll tell you how to study and the order of the syllabus and all. We'll discuss after that. उसके बाद quants में अगर देखोगे तो majorly 3 section है. एक है आपका basic statistics and probability till hypothesis का एक section होगा. एक सेक्शन आपका पूरा का पूरा रिग्रेशन के ऊपर है, 3 या 4 चैप्टर्स होंगे आपके यहाँ पर. बैलेंस पोर्शन एंड एक और अलग से लिखना बनता है EWMA एंड GAHS. नाउ वन क्वेश्चन वाज कि मैथ्स कितना ज्यादा रहेगा, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव लॉट ऑफ मैथ्स से थोड़ा ज्यादा प्यार रहता है. तो इन दैट रिस्पेक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, देखिए लॉगरिथम का एक बेसिक सा फॉर्मूला खाली log a to the power x is going to be x log a, तो 2-3 सा रहा. इंडेक्स नंबर्स अगर बात करेंगे तो a to the power x whole to the power y is equal to a to the power xy. So it's not going to be hardcore maths like that. तो इतना सा एप्लीकेशन तो आएगा ही आपका मैथ्स में. दूसरा चीज, जब आप प्रोबेबिलिटी सुनेंगे तो आपको लगता है कि वो प्रोबेबिलिटी, वो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, वो सब याद आएगा कि मेरा डिक्शनरी में ये वाला वर्ड कितना टाइम पे आएगा, वो सब आप लोगों को समझ में आने लगेगा. सो सी, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट काइंड ऑफ मैथमेटिक्स. फर्स्ट थिंग, अगर किसी का 11-12 में मैथ्स नहीं भी होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. दैट इज वन. दूसरा चीज, आपका मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस एंड ऑल नहीं रहेगा. व्हाट यू विल हैव इज लिटिल बिट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. प्रोबेबिलिटी में भी these guys are here, so you can ask them. ये लोग L1 एंड ऑल किया हुआ है CFA का, तो probability is similar. L1 CFA L1 का and FRM L1 का, that part is similar. So when we talk about probability, you will notice when we talk about probability, please quickly, थोड़ा सा कर जाइएगा, quickly. अगर आप थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का अगर बात करेंगे तो लाइक आई मेक यू रिमेंबर फॉर्मूलाज ऐसा कि टोटल प्रोबेबिलिटी सिग्मा p इज इक्वल टू 1. ऑब्वियसली सारा इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का टोटल करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, 100%, उससे ज्यादा हो नहीं सकता. प्रोबेबिलिटी हैज टू रेंज बिटवीन 0 and 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ये वाला होता था ना, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B. खाली ये 3 फॉर्मूला कराऊंगा प्रोबेबिलिटी का, और एक भी फॉर्मूला आपको याद करने नहीं दूंगा. बेस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, लॉट ऑफ यू गाइस 11 and 12 में. आई डोंट नो द फॉर्मूला ऑफ बेस थ्योरम माई सेल्फ. आई कैन डिराइव इट बट आई डोंट नो द फॉर्मूला, एंड नाइदर विल यू नीड टू लर्न द फॉर्मूला. तो बेस थ्योरम है, लेकिन बेस थ्योरम आप एक छोटा सा ट्री बना के इतना इजीली सम कर पाओगे. आप मेरे को खुद को याद नहीं, आप लोगों को क्या याद कराऊंगा, मेरे को ही नहीं आता है. बट देन आई कैन डिराइव द फॉर्मूला. You will be able to derive the formula, but you will not be able to learn the formula. Because the first thing, अच्छा एक चीज मैंने मेंशन नहीं किया, अगर आप लोग मगअप करेंगे तो FRM छोड़ दीजिएगा. I'll be very honest and very straightforward and blunt about it. Mugging up is not going to help. क्योंकि MCQ है, theoretical question भी आएगा तो definition और ये सब points नहीं पूछेगा. They will be asking you analytical questions. तो आपका मगअप करना नहीं चलेगा. And समझाना, वो responsibilities over here that we take care of. लाइक फॉर्मूलाज वगैरह भी बोल रहा हूँ ना, तो जितने फॉर्मूलाज प्रूव करा सकेंगे 70% फॉर्मूलाज विल ट्राई मेक इट प्रूव इन द क्लास, ताकि उसको अप्लाई आप कर पाओ. एंड डिफिकल्ट नहीं है. बेस थ्योरम बोल रहा ना, फॉर्मूला ड्राइव नहीं करना होगा, आपको करना ही नहीं होगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला के आप यूनिटरी मेथड से आपको आधे सम्स करा दूंगा. योर अंडरस्टैंडिंग? सो वील यूज यूनिटरी मेथड क्लास 8 का बेसिक मैथ्स यूज करके ना, वील बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो पहला चीज, मैथ्स से प्लीज घबराइएगा मत. वी डू इट फ्रॉम स्क्रैच. We use very small little basics, and वो स्कूल लेवल टाइप का टीचिंग नहीं करेंगे. मतलब एक होता है ना कि आपको मगअप कराना है, ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स. तो हम लोग का क्वालिटी भी वैसा ही रहेगा कि हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे सारा का सारा फॉर्मूला एंड विल बी एबल टू अप्लाई इट. तो अगर किसी का मैथ्स 11-12 में नहीं था तो उसको कोई इशू नहीं है. ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा एंड ऑल इज नॉट देयर. हल्का फुल्का लॉग एंड इंडेक्स नंबर्स का एप्लीकेशन होगा, 2-3 फॉर्मूला होंगे, लिखा भी दूंगा. मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, कोवेरियंस, वो सारा चीज का फॉर्मूला एक्चुअली हम लोग 11-12 में रटा मराते थे हम लोग को, बट यहाँ पर आप लोग को मगअप नहीं होगा.
यू विल बी अंडरस्टैंडिंग एवरी सिंगल फॉर्मूला. आज कोवेरियंस का फॉर्मूला भी क्या है, कैसे आया, वो बताऊंगा. Probability I told you, you're just learning what? Probabilities between 0 and 1, summation of probabilities 1 and वो A union B वाला फॉर्मूला. ये तीन को छोड़ के आपको probability का एक भी फॉर्मूला मगअप नहीं कराऊंगा. So you can understand that the maths is going to be basic. I'm not saying it's going to be very easy. आप concentrate करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, आपका आराम से होगा. मगअप अगर करेंगे तो FRM नहीं होगा. I'm telling you very honestly. Even with CFA and even with CA, a lot of people think CA is mugging up, volume इतना and all. वो सब बोलने का बात है. I cannot mug up. It's not possible. But then आपको याद करना है, आपको समझना पड़ेगा. So please focus on that. You have to understand the content. So quants में one is statistics and probability. Hypothesis में आपको short में समझा नहीं पाऊंगा. Regression में basically क्या होता है, अपने कोई चीज का equation बनाते हैं ना, y is equal to mx plus c. एक नॉर्मल सा इक्वेशन है, y is equal to b0 plus b1 x1 इस तरीके का. अब इक्वेशन क्या हुआ, से फॉर एग्जाम्पल मेरे को पता करना है आज SBI का स्टॉक, SBI का प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट में, डोंट यू थिंक एक बहुत रिलेशन होना चाहिए. आज इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाएगा तो SBI का स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे होना चाहिए. व्हाट इफ आई वांट टू मेक एन इक्वेशन, SBI का स्टॉक प्राइस इज इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग इनटू इंटरेस्ट रेट. तो वो इक्वेशन कैसे बनेगा, उस इक्वेशन को स्टडी करना, वो इक्वेशन कितना एक्यूरेट है, दोज थिंग्स आर व्हाट वी कवर इन रिग्रेशन. अगेन 11-12 में अगर आपने नहीं किया, इट डजंट मैटर. किया भी होगा ना तो ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 11-12 में आपने 4 फॉर्मूला रटा मारा होगा और कुछ नहीं किया होगा. बट ओवर हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ एवरी फॉर्मूला. बैलेंस में आपका 3-4 बेसिक चैप्टर है, थोड़ा सा मगिंग अप रहेगा, हल्का फुल्का, बहुत छोटा चैप्टर्स है. इट हार्डली टेक्स हाफ एन आवर पर चैप्टर. 4-5 चैप्टर्स दिया हुआ है, वो अपना कवर हो जाएगा. वी डोंट नीड टू डिस्कस सो मच. EWMA गार्ड्स अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि इससे 1, 2 या 3 क्वेश्चन आ जाता है. एक ही चैप्टर है, 2-3 फॉर्मूला है, लेकिन इसका एप्लीकेशन आपको इस बुक में मिलेगा. तो मेरा जो ऑर्डर ऑफ टीचिंग होता है वो थोड़ा बहुत ऐसा नहीं होता है कि मैं पूरा सीरियल ऑर्डर में पढ़ाता हूँ, बिकॉज आई नो विच चैप्टर इज रिलेटेड टू व्हाट. लाइक यहाँ पर एक कैपिटल स्ट्रक्चर इन बैंक्स, रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक्स का एक चैप्टर है. आई विल टीच इस बुक में एक ऑपरेशनल रिस्क का चैप्टर उसके साथ पढ़ाऊंगा. इस बुक में एक क्रेडिट मैनेजमेंट, एक रेटिंग एजेंसीज, एंड इसमें एक रेटिंग एजेंसीज का एक चैप्टर है. तो दोनों में साथ में पढ़ाऊंगा. सो आई नो एंड यू विल ऑल्सो स्टडी दिस इन द सेम मैनर एट होम. So I'll tell you which chapter in which order to study and all. Like quants करेंगे तो quants का पूरा सेक्शन सीरीज में चलेगा. ये खत्म होगा, उसके बाद मे बी आई मूव ओवर हियर अ लिटिल बिट, बिकॉज खाली प्रैक्टिकल खाली थियरी कराऊंगा तो इरिटेटिंग हो जाएगा. और मे बी वील कीप दीज टू बुक्स पैरेलल. जनरली आई कीप द फर्स्ट टू पैरेलल एंड द थर्ड एंड द फोर्थ पैरेलल. सो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉजिकल वे इन विच वी विल स्टडी. मतलब हर एक चैप्टर का कोई रिलेशन है. तो ये वाला चैप्टर आई ऑलवेज डू इट एट द एंड. आपका क्वांट्स का मैं खाली ये सेक्शन तक खत्म कराऊंगा, उसके बाद मैं क्वांट्स भूल जाऊंगा एक महीने के लिए. तब मेरा बुक 3 और 4 चल रहा होगा. अगेन आई कम बैक टू दिस बैलेंस चैप्टर्स एंड EWMA, क्योंकि बैलेंस में ना आपका थोड़ा सा मगिंग अप रहेगा यहाँ पर. सो रिटेंशन वाला चीज विल ट्राई टू कीप इट टुवर्ड्स द एंड. दिस इज व्हाट विल रिक्वायर मोर प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग. देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ मगिंग अप ओवर हियर. छोटा 3-4 बहुत छोटा चैप्टर है. मेजर कंटेंट इज गोइंग टू बी हियर एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो बुक 4 के साथ होगा, बिकॉज देयर इज अ लॉजिकल सीक्वेंस. राइट. So we complete these two parts and we complete this book first. उसके बाद में ये वाला लास्ट में आता है आपका, एंड फिर अपने बुक 3-4 पैरेलली चालू करते हैं. So this is what is there in the first and the second book. Everybody is okay till here? Now third book में when we enter, third book में I'll just erase this. When we talk about the third and the fourth book, इसमें एक्चुअली काफी सारा चैप्टर्स ऐसा है जो आधा इधर दिया हुआ है, आधा इधर दिया हुआ है. डेरिवेटिव्स इज समथिंग आई कैन नॉट टीच यू एग्जैक्टली राइट नाउ इतना शॉर्ट टाइम में. अब होता क्या है, से फॉर एग्जांपल आज मेरे को डर लग रहा है कि डॉलर के रेट्स बढ़ेंगे या गिरेंगे या कुछ. मैं अगर बैंक के साथ जाकर के, मेरा 1 महीना बाद माल आने वाला है, 1 महीना बाद मेरे को डॉलर्स में पेमेंट करना है. मैं बैंक के साथ जाकर के आज अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि आफ्टर 1 मंथ I will take $1 lakh from you and I will give you 66 lakh rupees. तो डोंट यू थिंक 1 महीने बाद आपका एक्सचेंज रेट मार्केट में कुछ भी हो, आपने 66 रुपीज पर डॉलर पे एक्सचेंज रेट 1 महीना बाद के लिए लॉक कर लिया है. डोंट यू थिंक आपने अपने आप को इंश्योर कर लिया है कि आज मार्केट में कोई भी रेट हो, मेरा 66 लाख रुपीज लगेगा फॉर द पेमेंट. आई हैव डन दैट, राइट. सो वो दैट इज अ डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन, दैट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट.
आप कॉन्ट्रैक्ट में आज एंटर कर रहे हो, टर्म्स एंड कंडीशंस आज डिसाइड हो रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट 1 महीने बाद होगा. You are trying to manage the risk of the dollar rates falling or rising after 1 year period, right? That is what we are trying to do over here. तो फाइनेंस में आपको जब रिस्क मैनेज करना है तो यू विल नीड टू यूज दोज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. ऑब्वियसली इट्स नॉट एग्जैक्टली एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, उस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है. दे आर नोन एज डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स 4 तरीके का होता है, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स. जिन लोगों का थोड़ा बहुत फाइनेंस का नॉलेज होगा उनको आता होगा. बाकी अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, सो यू नीड नॉट वरी एट ऑल, राइट? यू नीड नॉट वरी एट ऑल. तो फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप 4 तरीके के डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन होते हैं. डेरिवेटिव प्रोडक्ट सबसे ज्यादा यूजफुल चीज है इन ऑर्डर टू मैनेज रिस्क. इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल. आप समझने लगोगे, यू विल फाइंड डेरिवेटिव्स इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ फाइनेंस. डेरिवेटिव्स इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ फाइनेंस, स्पेशली ऑप्शंस, राइट? सो व्हेन वी गेट इनटू दैट, तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट और इसका फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स इज अ मेजर कंपोनेंट. आपको 5, 6, 7 चैप्टर तो फॉरवर्ड फ्यूचर्स पे मिल जाएगा. There is going to be an options का segment over here and you will also have options over here. तो अपने जब options करेंगे तो दोनों बुक का options साथ में करेंगे. पहले इसका कराऊंगा फिर उसका कराऊंगा. I'll do the whole options together. There will be around 8-9 chapters in total. उसके बाद there is a fixed income का कुछ theory chapters यहाँ दिया हुआ है. Fixed income मतलब आपका bonds and all. तो mortgage backed security, bonds वगैरह वो सब यहाँ दिया हुआ है. MBS and all, that is all over here. And यहाँ पर आपका practical side of fixed income is mentioned over here. तो fixed income का जो number, numerical part है, duration, convexity, वो सारा उधर दिया हुआ है. Swaps is given over here. And उसके अलावा एक आधे कुछ theory chapters आपको मिल जाएंगे यहाँ पर. Options, mortgage, एक आधा और एक्स्ट्रा थियोरी चैप्टर्स है. बाकी दिस इज द मेजर कंटेंट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बुक. फॉरवर्ड, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. ऑप्शंस सबसे यूजफुल, सबसे इंटरेस्टिंग डेरिवेटिव प्रोडक्ट है. एंड फॉरवर्ड, फ्यूचर्स पूरा का पूरा होगा सर. फिक्स इनकम में आपको 4, 5, 6 चैप्टर्स मिलेगा. ऑप्शन में आपको 3 चैप्टर्स मिलेगा यहाँ पर इन द 4th बुक. उसके अलावा 4th बुक में देयर इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज योर वैल्यू एट रिस्क एंड स्ट्रेस टेस्टिंग एंड ऑल. वैल्यू एट रिस्क का रिस्क मेजर करने का भी ना बहुत तरीका होता है. स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ मेजर ऑफ रिस्क. से फॉर एग्जांपल आज आपका पोर्टफोलियो है, वो रिटर्न आपका एक स्टॉक है, वो आज 10% कमाया, कल 11, कल 9.5, फिर 10.5, 11.5, इस तरीके का रेंज में. रिस्की कम है ना, क्योंकि वो ऑलमोस्ट एक ही रेंज में कमा रहा है, 8-11 के रेंज में, इन अ वेरी नैरो रेंज. अब एक दूसरा स्टॉक आपको देता हूँ, 4%, 25%, 40%, -20%, इस तरीके का रिटर्न है. Don't you see there is so much of variability? Which one is more risky, first one or the second one? Second one. तो वो जो second stock हुआ, that is more risky. उसका standard deviation will be very high. उसका volatility, उसका variability, standard deviation, whatever term you use, that is very high. It is more risky. तो वो जो चीज है, that is one तरीका, one measure of measuring risk, one way of measuring risk. उसी तरीके से risk measure करने का बहुत सारा और तरीका है. Value at risk is one of the very important ways of measuring risk. You will not know normal distribution. Honestly, आप लोग पढ़ोगे तब समझ में आएगा. But basically, value at risk क्या बोलते हैं ना? There is a 5% probability, there is a 5% chance कि एक साल में आपका जो लॉस है वो इस X अमाउंट से ज्यादा होगा. वो X अमाउंट फाइंड आउट करें. तो एटलीस्ट अपने बोल सकते हैं हाँ 10% probability है, हाँ 5% probability है कि इससे ज्यादा का नुकसान हो जाएगा. Something like that. तो वो चीज स्टडी करना है, उसका प्रोजेक्शंस, एंड दैट पार्ट वी स्टडी ओवर हियर. स्ट्रेस टेस्टिंग का बात करेंगे आज. से फॉर एग्जांपल अपने बोल सकते हैं कि अगर डॉलर का रेट 1 रुपया ऊपर नीचे अगर होता है तो अपना प्रॉफिट परसेंटेज में क्या इफेक्ट आया, वो सेंसिटिविटी हुआ. लेकिन अगर आप बोलते हो आज ऑयल का प्राइसेस तो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस हो गया ना ऑयल का प्राइसेस में, तो उसके कारण आपका बैलेंस शीट पे, आपका पीएल अकाउंट में क्या इफेक्ट आएगा, उसको स्टडी करना. स्ट्रेस टेस्टिंग, यू आर स्ट्रेसिंग अ सर्टेन वेरिएबल, सो वी डू दोस थिंग. उसके बाद रेटिंग एजेंसी, एक क्रिसिल, इक्रा एंड ऑल, ये लोग भी क्या करते हैं, लोग रेटिंग देते हैं ना, कौन सा बॉन्ड डिफॉल्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या है एंड ऑल. So that rating agency वाला part also we discuss. There are 2-3 chapters in rating agency. One is over here, one is over here. That is what we discuss over here. उसके अलावा कंट्री रिस्क को भी थोड़ा सा असेस करना becomes important. क्योंकि आजकल अपने देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग इन एवरी अदर कंट्री. तो वो वाला चीज में कैसे क्या अपने इन्वेस्ट करते नहीं करते हैं, वो सारा चीज के लिए एक छोटा सा चैप्टर दिया हुआ है कंट्री रिस्क करके. वी स्टडी इन दैट.
So this third book का major section value at risk you'll have 4-5 chapters, stress testing and all. Fixed income you'll have around 5 chapters or something. Options will be 3 chapter but they'll be very very important. And उसके अलावा capital structure in banks करके एक होगा. इसीलिए मैंने बोला था operational risk, capital structure in banks and book 1 का risk management in banks. तो वो 3 चैप्टर मैं साथ में कराता हूँ. एक book 1 का and book 4 का 2 चैप्टर. उसमें what is the expected loss? Say for example I'll ask you, एक बैंक है उसने 5 लाख रुपए का लोन देकर रखा है. 100 रुपए का लोन दिया है 5,000 लोगों को, 5 लाख का लोन हो गया. आई एम टेलिंग यू देयर इज अ 5% लोग डिफॉल्ट करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज 5%. 5 लाख का 5% कितना हुआ? 2,500. सो 2,500 का नुकसान होना चाहिए हिसाब से. 5 लाख नहीं 25,000 विल बी दी नुकसान. अब ऐसा थोड़ी होता है कि कोई अगर डिफॉल्ट करेगा, इफ आई डिफॉल्ट विल आई नॉट पे द होल अमाउंट, मे बी आई पे 30-40%. मेरा एसेट को बेच करके थोड़ा अमाउंट तो पे बैक करेंगे ना अपने. If I have taken a loan of 100 rupees, I might not be able to pay the 100 back, but I'll pay 60 back suppose. So what will be the expected loss? Only 40. So 25,000 में से 40% का अगर नुकसान होता है, मतलब 40% is the 60% is recovery, 40% is the loss given a default is happening. So can I say कि 10,000 expected loss अगर 5 लाख का लोन बैंक देता है तो इस तरीके से expected loss calculate करना, that will be one chapter over here. So book 4 is going to discuss on that part. Value at risk is one part, fixed income, options, and you can call it residual chapters. वो छोटे छोटे 4-5 चैप्टर्स, कंट्री रिस्क हुआ, इंटरनल रेटिंग एजेंसी हुआ, ऑपरेशनल रिस्क हुआ, तो वो 4-5 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं आपके. सो दिस इज योर होल सिलेबस. सॉवरेन डेट वगैरह वी डिस्कस दैट कि आप दूसरे कंट्री में अगर रिस्क में इन्वेस्ट करते हो तो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क दैट यू नीड टू फोकस ऑन. सो दिस इज ब्रॉडली योर सिलेबस विद रिस्पेक्ट टू दी 4 बुक्स. उसके बाद सो सिलेबस आई गेस यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. रजिस्ट्रेशन देखिए. अच्छा, अब आपको पढ़ना कहाँ से है और कैसे पढ़ना है, लेट्स डिस्कस दैट. इंस्टीट्यूट में जो आप ऑर्डर करेंगे प्रिंटेड बुक्स लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑनेस्टली इट्स वेरी एक्सपेंसिव. आई एम नॉट सेइंग कि इंस्टीट्यूट का बुक खराब है, अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो वी डू नॉट गो फॉर दैट. वॉट यू विल डू इज यू विल नीड टू परचेज श्वाइजर का बुक. श्वाइजर का बुक के लिए आई गिव यू द बुक सेलर का नंबर. जनरली वो बॉम्बे से कुरियर कर देता है, आपके घर पे बुक्स आ जाता है एंड यू डिपॉजिट द अमाउंट इन हिज बैंक अकाउंट. इट्स अ वेरी नॉमिनल अमाउंट. 4 बुक्स, आपको 4 बुक्स मिलेगा एंड आपको एक प्रैक्टिस बुक मिलेगा. आफ्टर द क्लास आई गिव यू आई सर्कुलेट द नंबर. 3-4 दिन में घर पे बुक्स आ जाएगा एंड यू नीड टू पे लेस देन 1,000, 800-900 या ऐसा कुछ होता है, वो बुक्स भेज देता है. सो इट्स रिलेटिवली चीपर. दिस इज नॉट व्हाट वी प्रोवाइड. ठीक है. दूसरा चीज, यू विल नीड टू बाय अ कैलकुलेटर. कैलकुलेटर के लिए आपके पास सारा, आप कोई भी नॉर्मल कैलकुलेटर एग्जाम हॉल के अंदर ले जा ही नहीं सकते. You have to buy a financial calculator, that is Texas Instruments, that is TI BA 2 plus or BA 2 plus Professional. जो पहला वाला कैलकुलेटर है that is a plastic body one, ये नीचे वाला मेटल बॉडी है. इनके बटन्स एग्जैक्टली सेम है, खाली इसमें एक आधा फंक्शनैलिटी एनपीवी के अंदर एक्स्ट्रा डाला हुआ है. बट ऑनेस्टली उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेंड करना डज नॉट मेक सेंस. यू हार्डली यूज दैट फंक्शन एंड वो फंक्शन के बिना भी उस सेम चीज को कैलकुलेट करना विल टेक यू हार्डली 5 सेकेंड. तो ऐसा नहीं है कि ये कैलकुलेटर के लिए स्पेंड करना वर्थ होगा. दिस विल अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट यू 2,500 एंड ये आपका 3,500 के आसपास पड़ेगा. दिस इज द प्लास्टिक बॉडी, दिस इज द मेटल बॉडी. बाकी आप फंक्शनैलिटी के केस में समझ लो कि ना के बराबर का डिफरेंस है. सो इट विल नॉट मैटर, इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू दीज. ठीक है. दैट इज अबाउट योर कैलकुलेटर. यू विल नीड दीज बुक्स. श्वाइजर इज गोइंग टू बी द बेस बुक जो आप यूज करोगे. दीज आर द बुक्स दैट्स श्वाइजर. नाउ इंस्टीट्यूट का मटेरियल क्या है ना, बहुत ही वेल डिफाइंड होता है. विद रिस्पेक्ट टू सीएफए और विद रिस्पेक्ट टू एफआरएम द मटेरियल इज वेरी वेल डिजाइन. 4 बुक है, हर बुक का इनका टॉपिक्स है. टॉपिक रिव्यू बोलते हैं या चैप्टर. हर एक चैप्टर का जो सब हेडिंग है ना, उसको लर्निंग आउटकम बोला जाता है, उसको भी डिफाइन किया हुआ रहता है. सो एवरी चैप्टर विल हैव लेट्स से एवरी सिंगल 1 सेकेंड सब हेडिंग इज डिफाइंड. तो ये इतना सा सब हेडिंग है, फिर ये नेक्स्ट सब हेडिंग है. तो इंस्टीट्यूट का पूरा सब हेडिंग इज डिफाइंड. तो आपका जो इंस्टीट्यूट मटेरियल में सब हेडिंग है और जो श्वाइजर में सब हेडिंग है वो सेम है. तो दे हैव डिस्क्राइब द सेम थिंग बिलो. श्वाइजर इज व्हाट यू विल स्टडी. उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा होगा आई विल गिव.
आप लोग को यहाँ पर प्रैक्टिस बुक, इस प्रैक्टिस बुक में खाली 2 पेपर्स होगा 100 क्वेश्चंस का। उसके अलावा प्रैक्टिस एग्जाम का अप्रोक्सीमेटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू विल गेट 100 तो हर एक 4 सब्जेक्ट का आपको 2 पेपर मिलेगा, तो 20 30 का एक पेपर एंड एक और पेपर, एक डिफिकल्ट पेपर, एक इजी पेपर। फुल मॉक टेस्ट भी एक या दो या 3 मिलेगा, 2 मिलेगा शायद, तो मतलब सफिशिएंट प्रैक्टिस मिलेगा। एंड उसके अलावा भी देयर इज अनदर मटेरियल फॉर प्रैक्टिस, उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का दिया है, मतलब 300 400 पेज का प्रैक्टिस मटेरियल। यू हैव टू अंडरस्टैंड उतना करना पॉसिबल नहीं है, तो उस चीज़ को मैंने सेग्रीगेट किया है 3 फोल्डर्स में, टू डू, नॉट टू डू, मे बी डन। वो टू डू वाला में भी मैंने सारे फाइल्स को बाइफिकेट किया हुआ है, प्रायोरिटी 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 तो पक्का बनता है घर पे करना प्रैक्टिस, 4 5 ट्राई करना है 100% करने का, बाकी दोनों फोल्डर छोड़ देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आई विल बी गिविंग यू प्रैक्टिस एग्जाम्स ऑल्सो। You'll have 2 mock papers, you'll have the individual subject का practice papers and all, you'll have sufficient practice, all that is my problem। जो भी extra notes वगैरह जो भी लगेगा वो सब आपको दिया जाएगा। जो भी कुछ लिखाऊंगा क्लास में, मैक्सिमम आई ट्राई टू प्रेफर कि आप श्वाइजर के बुक्स में लिखो, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर स्टडिंग, ट्राई करिएगा कि मैक्सिमम थिंग्स आर मार्क्ड एंड अंडरलाइन एंड ऑल इन द बुक इटसेल्फ, क्योंकि एग्जाम आपका एक दिन में चारों पेपर का एग्जाम सेम 4 घंटे में होगा। So it becomes very important that you're shortening the content in Schweizer, because आपको 2-3 दिन में चारों बुक रिवाइज करना है, 250-300 पेज का अगर आपको 4 बुक रिवाइज करना है विद इन अ कपल ऑफ डेज, so it's important that you're marking or you're cancelling off or you're shortening it on the side। जो भी चीज सिंप्लीफाई करना होगा, I'll give you additional notes for that, simplification and all का, but your base textbook is going to be this। practice वगैरह होगा, we'll do it in class also, we'll focus more on the understanding part, everything will be taken care of। एंड उसके अलावा वो जो मैंने बोला कि प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर आपको मेल भी होगा, जो पेपर्स है लाइक आई टोल्ड यू ना कि इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, टॉपिक वाइज एंड मॉक पेपर्स, दैट विल गेट इन हार्ड कॉपी। एंड कुछ और प्रैक्टिस वाला वो आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगा, यू विल गेट एवरीथिंग। आपको खाली अपने तरफ से श्वाइजर परचेज करना और कुछ नहीं करना, दैट इज द बॉटम लाइन। बाकी जो भी प्रैक्टिस होगा, जो कुछ भी होगा, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। यू हैव टू बाय द बुक्स एंड कैलकुलेटर सेपरेटली। How to study would be, again we'll have the classes on weekends, Saturday and Sunday। 3 आवर का क्लास होता है। आप लोग का जो डाउट्स होगा, आप लोग जनरली मेरे को क्लास के बाद पूछोगे या क्लास के पहले। हाँ, टुवर्ड्स दी एग्जाम जब आ जाएगा, देन ऑब्वियसली व्हाट्सएप करके भी डाउट्स पूछते हैं सबको, बिकॉज ऑब्वियसली एग्जाम टाइम आ गया। बट ऑब्वियसली एग्जाम टाइम नहीं आया तब तक ऑब्वियसली आपका संडे को अगर डाउट है तो यू कैरी फॉरवर्ड टिल सैटरडे, देन मंडे टू फ्राइडे सॉल्व करके, इट मेक्स नो सेंस। बट टुवर्ड्स दी एग्जाम दैट इज ऑल्सो देयर, डाउट सॉल्विंग वगैरह यहाँ पे क्लासेस चलता रहता है। आप व्हाट्सएप करके कभी भी आ जाओ अपना डाउट्स वगैरह सॉल्व करने के लिए, कोई इशू नहीं है। सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू। क्लास टाइमिंग्स विल डिस्कस, पास रेट्स एंड एग्जाम स्कोरिंग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्स का आपका पास रेट अप्रॉक्सीमेटली 50% ±5% रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 50% रहेगा। एग्जाम का स्कोरिंग में ये लोग इस तरीके का कुछ नहीं बोलते हैं आपको कि इतना मार्क्स ले आओ या इतना राइट कर लो तो तो आपका क्लियर हो जाएगा। इन जनरल द थंब रूल वी यूज इज 70% क्वेश्चंस नीड टू बी करेक्ट। तो 70 अगर 100 में राइट है तो अपने पक्का ही, मतलब मोर और लेस वी आर सॉर्टेड की क्लियर होगा। आपको जो रिजल्ट दिया जाता है ना, वो आपको क्वार्टाइल में रिजल्ट दिया जाता है। तो आपका 4 सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हर एक का आपको क्वार्टाइल देगा। तो अगर आप टॉप 25 परफॉर्मर्स में है तो यू आर इन द फर्स्ट क्वार्टाइल। इफ यू आर इन द 50 to 75%, तो अगर 100 लोग एग्जाम दे रहे हैं, 1000 लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो आप 250 के बाद अगर आ रहे हैं बट 500 के ऊपर परफॉर्म किया है तो Q2। इफ यू आर इन द बॉटम 25% Q4, एंड अगर वो थर्ड वाला पार्ट में ब्रैकेट में लाई करे तो Q3। जनरली क्या होता है इंडियन एग्जाम्स में कि 40% के ऊपर आना चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट में एंड 50% ऑन एन एवरेज। जनरली अपना CA CS ये सब एग्जाम्स का यही ट्रेंड रहता है। फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन एंड अंडरस्टूड इज कि आपको ट्राई करना है क्वार्टाइल 3 में भी अगर आप आते हैं ना, तो क्वार्टाइल 3 कुड बी 49 परसेंटाइल ऑल्सो, इट कुड बी 26 परसेंटाइल ऑल्सो। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड 26 परसेंटाइल यू विल फ्लंक, 49 परसेंटाइल में भी अगर आप आते हैं तो आप पास हो जाएंगे। बिकॉज अगर 50% पीपल आर पासिंग, इसका मतलब आपका तो 51 परसेंटाइल भी अगर चारों सब्जेक्ट में आ गया तब तो आप टॉप 50 में आ ही गए ना। सो ऑन एन एवरेज यू शुड बी परफॉर्मिंग वेल ऑन एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेवल बेसिस एंड इन टोटलिटी ऑल्सो। तो आप ये नहीं कर सकते कि मैंने एक सब्जेक्ट को छोड़ दिया और दूसरा सब्जेक्ट खाली पढ़ दिया। हर सब्जेक्ट में एवरेज में अच्छा परफॉर्म करिए एंड आपका ऑन एन एवरेज भी आप अच्छा परफॉर्म करिए, एंड दैट आई थिंक वी शुड नॉट वरी सो मच अबाउट इट। इनफैक्ट हम लोग तो अच्छा स्कोर्स के साथ पास होना, वी शुड बी एमिंग एट गेटिंग अ Q1 इन ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट इन ऑल द सब्जेक्ट। दैट इज व्हाट वी शुड बी टारगेटिंग, वी शुड बी एमिंग कि अपना क्वार्टाइल 1 चारों का चारों सब्जेक्ट्स में आए, राइट।
तो एग्जामिनेशन का ग्रेडिंग का आपको ऐसा कोई कुछ बोलेगा नहीं, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको क्वार्टाइल्स ही देगा। चारों सब्जेक्ट के लिए यू विल बी गिवन क्वार्टाइल्स फॉर द एग्जाम। इन जनरल 70% ऑफ द क्वेश्चंस वी शुड मार्क करेक्टली, एंड सेकेंडली आपका 70 नहीं होकर 60 भी होता है तो आप पास हो जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। बट वी शुड मेंटेन कि हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का अपना एक डिसेंट लेवल पे स्कोर्स आए। दैट इज व्हाट वी मेंटेन फॉर दी पासिंग रेट्स एंड एग्जाम स्कोरिंग के लिए। सिलेबस वी डिस्कस्ड। हाउ टू स्टडी में अगेन, सो आप लोग चैप्टर्स पढ़ोगे, जो आपका चैप्टर है वो पूरा डिटेल्स है, उसके बाद में वो की कॉन्सेप्ट्स करके वो समरी दिया हुआ दैट्स ओके। उसके बाद बुक के पीछे में 4-5 क्वेश्चन है, वो आप जब चैप्टर पढ़ोगे ना वो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, बट उससे बेटर लेवल का क्वेश्चन आता है। आप अपना चैप्टर्स पढ़ो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर चैप्टर खत्म होते ही प्रैक्टिस करना शुरू करना होगा, बिकॉज ऑब्वियसली नोबडी स्टार्ट स्टडिंग अर्ली ऑन इतना ज़्यादा। बट व्हाट यू डू इज, जैसे आज हाइपोथेसिस, जैसे मैंने चंक्स में डिवाइड किया है ना सिलेबस को, एक चंक खत्म होगा तो आप उसका प्रैक्टिस फिर शुरू कर दो। So you try to target to understand the content. It's very important. MCQ है, mugging up will not work. And उसके बाद में आप उसका प्रैक्टिस शुरू कर दो। प्रैक्टिस का पूरा मटेरियल आपको दे दिया जाएगा. You don't have to worry about it. Right? Order of the study also I'll keep on telling you. We start with book 1 to first. 1 और 2 को पैरेलल रखते हैं. क्वांट्स वाला पार्ट को थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे शुरू में. बुक 1 का थियोरी चैप्टर एक एक दो करके उठाते रहेंगे। मे बी 3 क्लास के बाद एक दिन बुक 1 मंगा लिया, 2-3 चैप्टर कर लिए, सो दैट थोड़ा थियोरी प्रैक्टिकल में बैलेंस होगा। पोर्टफोलियो वाला पार्ट हैज टू बी कंप्लीटेड ओनली आफ्टर बुक 2 का क्वांट्स का हाइपोथेसिस तक सेक्शन खत्म हो गया, प्रोबेबिलिटी वगैरह, बिकॉज वरना मैं पोर्टफोलियो पढ़ा नहीं पाऊंगा। बुक 1 में जनरली 100% कंप्लीट करा देता हूँ। बुक 2 मैं रिग्रेशन तक करा करके छोड़ देता हूँ, फिर मैं बुक 3-4 कराता हूँ साथ में। फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स एक सेक्शन हुआ, ऑप्शंस दोनों बुक का एक सेक्शन हुआ, फिक्स्ड इनकम इज 1 फुल सेक्शन, so accordingly we go. We take up chunks and we complete both the book 3 and 4 parallelly. That is how we go about studying. So आप लोगों का क्लास जो होगा, आप लोगों को खाली इतना करना है कि सैटरडे संडे जो भी पढ़ा रहे हैं आपको, आप उसको घर जाके अपडेट कर लो। इन द मंडे टू फ्राइडे वाला टाइम जितना भी सैटरडे संडे को पढ़ाया हुआ है उसको समझने वाला काम आप लोग कर लेंगे, अगर अप टू डेट रखेंगे तो इट विल नॉट बी एन इशू, बिकॉज आवर क्लासेस विल एंड। आपका एग्जाम 19 नवंबर आपने बोला, तो आपका क्लासेस 19 अक्टूबर के पहले खत्म होगा ही होगा। हम लोग ट्राई करते हैं, हम लोग फिर बेस, अच्छा टाइमिंग वाला चीज़ विल बी बेस्ड ऑन योर मेजॉरिटी। एक बार रिकॉर्डिंग खत्म करके फिर डिस्कस कर लेंगे आपस में, एंड उसके अकॉर्डिंगली सैटरडे संडे का टाइमिंग फ्रीज कर लेंगे। मैं एक और दिन थर्ड डे भी ऐड कर देता हूँ, जनरली जुलाई अगस्त में आई ट्राई टू कीप 1 मोर एक्स्ट्रा डे, ताकि अपना सिलेबस थोड़ा पेस पकड़ ले, बिकॉज इट्स बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू फिनिश द सिलेबस अर्लियर। जॉब्स के साथ कंप्लीट करना, FRM पढ़ना इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज वाई फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज वी हैव द क्लासेज ऑन वीकेंड्स। तो आप लोग 3-3 घंटे का 2 क्लास या मैक्सिमम 3 क्लास करोगे हफ्ते में, एंड उसके बाद में घर पर जा करके आपको अपडेट करना होगा। उसके अलावा प्रैक्टिस करोगे, पढ़ाई करोगे, आई थिंक दैट्स अबाउट इट। एंड वो शॉर्टन करने वाला चीज़ लाइक यू ऑनलाइन, बिकॉज यू नॉट रीडिंग द होल पेज। पेज में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, आप शॉर्ट में अंडरलाइन किया, उसके साइड में लिख लिया, फॉर्मूला लिस्ट आपको मिल जाएगा, शीट मिल जाएगा आपको फॉर्मूलाज का, आपको जो भी समरी शीट्स होंगे वो भी मिल जाएगा आपको, लाइक फाइनेंशियल डिजास्टर का, गाप कोड का, आपको काफ़ी सारा चीज़ कुछ मिलेगा, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू स्टडी उतना एग्जाम बुक मतलब टेक्स्ट बुक से। सो वो समरीज वगैरह जो एग्जाम में हेल्प करेगा, ऑल दैट यू विल गेट। Or there will be a lot of other summaries and a lot of other things we'll be providing. That will be that. And backup facility के लिए you can call up the office. I'll give you the number. आप ऑफिस कॉल करो, अपना बैकअप शेड्यूल करो, एंड वो हो जाएगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटी they are either going to include in the app, या फिर आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा, आप उसमें अपना नाम, नंबर, मेल ID, FRM L1 या जो भी आपका CFA L1 जो भी कोर्स लिया है वो, एंड उसके बाद आप अपना लिख दो कि मेरे को ये सब्जेक्ट का ये वाला क्लास का बैकअप चाहिए, या तो फिर आप क्लास का डेट लिख दो, तो उसके हिसाब से आप अपना बैकअप अपने टाइम पे शेड्यूल कर सकते हैं। ओवर हियर द बैकअप्स रन फ्रॉम मॉर्निंग 8 o'clock टू इवनिंग 8 o'clock, एंड द बैकअप्स इन द ऑफिस, बेंटिक स्ट्रीट में जो ऑफिस है पास में, वहाँ पर बैकअप रन्स बिटवीन आई थिंक ऑफिस आवर्स 11 to 6 वाला टाइम। तो बैकअप्स का फ्लेक्सिबिलिटी है, दैट विल नॉट बी एन इशू। आपको एक फ़ोन नंबर दूंगा, बैकअप्स बुक कर सकते हो। टाइमिंग विल डिस्कस आफ्टर द क्लास। ड्यूरेशन इज गोना बी 3-3.5 hours ऑल्सो। नंबर ऑफ क्लासेस, सिलेबस आपके सामने है। जनरली मैं 4 क्लास अगर बोलता हूँ तो वो 6 लगता है। So they are already smiling. So generally I take a little extra time because I get in depth and then समझाने लगता हूँ, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। So number of classes, but syllabus we complete before the 19th of October. ये लोग का भी सारा बैचेस का सिलेबस हमेशा 1 महीने पहले खत्म हुआ है। So that is that. And उसके अलावा वीडियो क्लासेस ऑल्सो स्टार्टेड। सो वीडियो क्लासेस स्टूडेंट्स जो लोग देखेंगे they'll be getting the pen drive, they will be watching the videos at home, and उनको भी कोई इश्यूज होता है तो डाउट सॉल्विंग के लिए द वीडियो स्टूडेंट्स दे कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी एंड टेक्स्ट मी और समथिंग, एंड दे कैन गेट बैक टू मी फॉर ऑल द डाउट क्लियरिंग। तो फोन पे सारा डाउट क्लियर हो जाता है, तो वैसा कोई इशू नहीं है।
हाँ वो लोग के लिए इट्स लाइक यू नो वीकली बेसिस दे कैन क्लियर ऑल द डाउट व्हाट्सएप एंड कॉल अप, बट आप लोग के लिए आप क्लास के आगे पीछे डाउट सॉल्व करना इन द बिगनिंग, एग्जाम के टाइम देखा जाएगा उस समय, फिर यू कैन ऑब्वियसली कॉल एंड क्लियर योर डाउट्स एंड ऑल, दैट विल हैपन। एंड आई थिंक और तो कुछ क्वेश्चन आए हैं एक्चुअली के रिस्पेक्ट में किसी ने पूछा था, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअलीज CFA लोग को 5-6 पेपर्स का एग्जामेशन मिलता है, FRM को भी एक पेपर का एग्जामेशन मिलता है एक्चुअली से, एंड इट्स नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू एक्चुअरीज, मतलब वैसे नहीं बोलूंगा, एक्चुअरीज इज मोर ऑफ इंश्योरेंस, दिस इज मोर ऑफ फाइनेंस, ये फाइनेंस का रिस्क मैनेजमेंट का डिग्री है। एक्चुअरीज इज गोइंग टू फोकस ऑन ओनली द इंश्योरेंस सेक्टर पर से। एक आधे पेपर आपका फाइनेंस का आता है, वो थोड़ा सा बाद में CP2 सीरीज में आता है, बट मेनली इट इज फोकसिंग ऑन वेरी हाई लेवल ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड हार्डकोर मैथ्स, जहां पर अपने स्टेटिस्टिक्स का एप्लीकेशन देखते हैं। वी डोंट वांट टू बिकम अ मैथमेटिशियन और समथिंग, we try to see the application of statistics and all. Actually is going to be very high level of statistics and mathematics, and it is going to be focusing more on the insurance sector, उसके लिए ज़्यादा relevant है। Financial sector में भी implications है उसका, but then insurance sector के लिए ज़्यादा relevant है, like मतलब 80% papers are going to be insurance related, 20% finance related है जो आप choose कर सकते हो। एंड उसके अलावा किसी ने पूछा था कि जॉब के साथ कर सकते हो, तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बिकॉज प्रोफेशनल कोर्स है, क्लासेस जनरली वीकेंड पे है। एंड दूसरा क्वेश्चन पूछा था वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड, तो आप जब इंस्टीट्यूट का ये सारा चीज़ भर दोगे, आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होता है, तो आप अपना आपका वर्क एक्सपीरियंस आपको इमीडिएटली नहीं दिखाना है। से फॉर एग्जाम्पल आपने पार्ट 1 कंप्लीट किया, फिर पार्ट 2 क्लियर किया, पार्ट 2 क्लियर करने के बाद में भी 1 साल बाद 2 साल बाद वो 4 इयर्स का गैप होता है, विद इन दैट पीरियड यू शो योर 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। वो 2 इयर्स एक्सपीरियंस डज नॉट मीन कि आपको CRO बन के या एकदम रिस्क मैनेजर का ही रोल होगा तो ही करना होगा, आपका प्रोफाइल जो भी है वो रिस्क रिलेटेड कुछ होना चाहिए। तो वो आपका प्रोफाइल कुड बी एनीथिंग, बट देयर कुड बी एन एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड यू नीड टू एक्सप्लेन दैट। से फॉर एग्जांपल यू आर अ परचेज मैनेजर, तो परचेज मैनेजर को भी तो रिस्क है ना कि दाम बढ़ जाएगा रॉ मटेरियल का, तो उसके अकॉर्डिंगली ही इज मैनेजिंग हिज वर्क समथिंग टू डू विद रिस्क, तो उस तरीके से भी अपना एक्सपीरियंस दिखा सकता है। आपका पार्ट 2 कंप्लीट होने के बाद आप अपना रेज्यूमे में लिख सकते हैं कि FRM पार्ट 2 क्लियर हो चुका है। आपको जो वो क्या बोलते हैं डिग्री लिखने का जो डेजिग्नेशन मिलेगा, वो वर्क एक्सपीरियंस सबमिट करने के बाद मिलेगा। So it doesn't matter, even if you cleared your part 2, you write in your resume that yes, FRM has been completed. वर्क एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया वो तो वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद आएगा। इट इज नॉट अ स्टाइपेंड, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ ट्रेनिंग और एन आर्टिकलशिप टाइप का और इंटर्नशिप टाइप का। आप जो भी जॉब करते हो दैट क्वालिफाइज फॉर दैट, एंड द सेम जॉब माइट क्वालिफाई एज अ वर्क एक्सपीरियंस फॉर FRM एंड CFA as well. So now a lot of people had a question about with respect to CFA and FRM. FRM में 2 लेवल है, CFA में 3 लेवल्स है। CFA is finance in general, relatively easier as compared to FRM honestly, बट दोनों का अलग अलग चीज है। CFA is focused on finance, तो CFA में रिस्क मैनेजमेंट एक छोटा सा पार्ट होता है लेवल 3 में जाकर के। हाँ क्वांट्स में आप देखोगे तो थोड़ा सा ओवरलैपिंग सेक्शन दिखेगा, फिक्स इनकम में जाओगे तो थोड़ा सा ओवरलैपिंग दिखेगा, बट FRM का पार्ट 2 और CFA का तो कोई भी चीज मैच करेगा ही नहीं, देयर इज नथिंग कॉमन। पार्ट 1 CFA लेवल 1 2 3 तीनों मिला करके 30% का कॉमन मिल जाएगा आपको FRM पार्ट 1 के साथ, तीनों लेवल मिला करके। लाइक पार्ट CFA पार्ट लेवल 3 में आपका कुछ वो स्ट्रैटेजीज होता है, वो इसमें है, लेवल 2 का कुछ है ग्रीक्स वगैरह, वो इसमें है, but then it's different. You have to understand that of course it's a finance degree, but it is specializing in risk management. CFA is a finance degree itself, so वो पूरा finance in general हो गया। दोनों कोर्स का अपना वैल्यू है अपनी जगह। ऑब्वियसली CFA, FRM and CAIA as I told you is known as a triple crown on finance in US. And उसके अलावा आप लोग का क्या क्वेश्चन था? Backup, timing, duration of classes, number of classes and वीडियो क्लासेस वाला लोग के लिए अगर हम फॉरगेटिंग एनीथिंग, तो वीडियो क्लासेस पीपल दे गेट जनरली 3 व्यूज, तो वो लोग एक ही वीडियो को 3 बार देख सकते हैं घर पर बैठ करके, तो बैकअप का सीन आता नहीं है। अगर उनको कोई एक पर्टिकुलर टेक्निकल इशू आता है, या फिर अगर आप लोग कोई एक वीडियो में अटक जाते हो या आपको एक वीडियो नहीं समझना है, आप ईमेल करो, हम लोग व्यूज बढ़ा देते हैं। सारे वीडियोज के लिए यू डोंट गेट इनफाइनाइट व्यूज, ऑब्वियसली मिसयूज प्रिवेंट करना होता है। एंड ये सारा मतलब देयर लॉट ऑफ वीडियोज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, सो दीज गाइज वॉच द वीडियोज ऑन यूट्यूब, you like the classes, you enroll for that, you get the pen drives delivered to your place, you can start watching the videos at your place. So that's with respect to video classes. And और कुछ तो I guess I'm not forgetting कुछ and और कुछ videos. So yeah, we are starting, so CFA is also starting 5 o'clock, you'll have that. And उसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ और मिस कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस है आपकी तरफ से? एनीथिंग दैट यू नीड टू आस्क?
नहीं, आप एग्जाम के लिए, अगर आप नवंबर एग्जाम के लिए रजिस्टर करोगे तो आपको नवंबर में देना होगा. अगर आप उसको डेफर करते हो तो कुछ मेडिकल रीजन अगर होता है तो दी इंस्टीट्यूट विल सी आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने भेजा है, मेल करोगे, मतलब कोई भी चीज़ फिजिकल कॉपी पे नहीं होता है, तो वो सारा चीज़ वो लोग चेक करते हैं एंड यू कैन डेफर, बट वो कोई गारंटी नहीं है कि आपका डेफर होगा. एंड अदरवाइज अगर आपको लास्ट में आके लगता है कि मेरा प्रेपरेशन नहीं है, मेरे को डेफर करना है, तो आप $100 पे करके डेफर कर सकते हो. तो $100 इज गोना कॉस्ट यू अराउंड 6-7 thousand टू डेफर द एग्जाम, सो दैट यू कैन डू. एंड आई थिंक दैट्स मोर और लेस. और बोलिए क्या क्वेश्चंस है एफआरएम से रिलेटेड? एनीथिंग एल्स दैट यू नीड टू आस्क, दैट यू वांट टू नो अबाउट? Nothing at all? So I think this is more or less about FRM, and yes, of course, I told you the reasons why FRM has become very important. The risk management part has become very important. Basel norms 2019 getting mandatory, the energy sector, oil sector, financial sector, MNCs, globalization, the forex risk and all. So बहुत सारे reasons ये risk management करने के लिए, that is why these things are getting very important, and obviously global designation, a lot of people are pursuing this for these reasons. एंड बाकी और भी डिटेल्स है, वट एवर दी अपकमिंग स्टफ आर, वो आपको वेबसाइट कुछ अपडेट हो रहा है, अभी भी आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा. बाकी वेबसाइट पे और भी जो चेंजेस है वो आई थिंक ट्यूसडे तक कुछ चेंज करके दे आर गोना गेट दैट. तो ये डेडलाइंस वगैरह आपका वेबसाइट पे भी है, सब्जेक्ट्स वगैरह वेबसाइट पे भी है. आज का जो क्लास का वीडियो वो भी अपलोड हो जाएगा, सो विल हैव ऑल दोस थिंग्स इन दैट कल. एक सेकंड. ठीक है, आई थिंक दैट्स मोर और लेस अबाउट इट.